फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है। एंड वेटेज भी लिखना है, वेटेज कितना वेटेज है 20 मार्क्स, 20 marks. द वेटेज इज 20 मार्क्स और ड्यूरेशन इज मे बी 45 मिनट्स, मे बी अभी तो आएगा आपको तुम्हारे पास टाइमिंग, ठीक है। मैम पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, बेटा बताया ना कि बता तो दिया हमने, 10 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। चलो, now come on the topics. This will be not asked into the first term. ये मतलब ये यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये किस फेडरलिज्म किस टर्म के लिए है, इट इज फॉर योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सॉरी फर्स्ट टर्म, ये तो अभी यूनिट टेस्ट हो रहा है ना। फर्स्ट टर्म एग्जाम विल बी कंडक्टेड व्हेन बाय द सीबीएसई November to In December. November. इन द मंथ ऑफ नवंबर, बेटा दिसंबर में नहीं होगा। और ये भी याद कर लो बेटा, एक बात इसको भी रखो, तुम लोग का हमने yesterday I told you that कि CBSE is going to make the portal of all the student, सारे बच्चों का एक पोर्टल बना रही है। तो वट एवर यू गोइंग टू बी ऑप्ट इन द योर टेस्ट एग्जाम, अभी जो टेस्ट होगा उसमें जो तुम्हारे मार्क्स होंगे, एवरीथिंग गोइंग टू बी फिट इन दैट पोर्टल। तो सबको पोर्टल में फिक्स कराना, मतलब फिट करना होगा, और दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय द सीबीएसई, वो सीबीएसई उसको रिकॉर्ड करती रहेगी। When there is need for any students, they can be see over there, ठीक है। तो be alert, be focused on your studies. I told you all of you make a group for the preparation of the board exams. Only the Miski, the Raman and Suryan's Tab, they make the group and send the link to me also, and I am also join over there. But what about the other student? Out of 6 students, only these students, and in his groups the 5 students are there. ठीक है। तो एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट, एनी क्वेरी? और ऑल ऑफ में हमने कहा कि लेकिन बाकी बच्चे तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके Ma'am, we made a group. you made, have you seen the link to me? Ma'am, from today I will send the link to you. हाँ, लिंक भेजो बेटा, देन आई कैन आल्सो बी ज्वाइन इन दैट ग्रुप ना। तो जब तुम्हारा होगा, यू कैन बी कॉल टू मी, यू कैन गिव कि मैम ज्वाइन दिस, तो आई नो ना हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड। तो इफ देयर इज समथिंग लैकिंग, आई गिव द सम टिप्स टू यू, ओके? Okay, बिकॉज ma'am. वी हैव टू शो द गुड परफॉर्मेंस बेटा, बहुत अच्छा शो करना है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, तो आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट माय सब्जेक्ट, on that platforms you can prepare all the subjects, okay? You make the timetable over that and you are going to be prepared like that for the all the subjects. Chalo, yesterday I started that ki how the means ki the is India is a federal country or not? So I said that India is a federal country because all the features of the federalism is found where in the India. What features? The first feature of the federalism is that there should be 2 or more than 2 level of the government. In India, type of the government, one is the rule for the one government for the energy for the state purpose, and last one is for the local purposes. ठीक है। Second feature is कि the all the level of the government they rule over the same citizens. It is also found in India. In India also the all level of the government they rule over the same citizen, because we the people of India, we are not saying that we are either the people of, so either we can
sorry, कि either we will live into the UP or Bihar, any part of the India's, but we know by the name of India, okay, because we have only one citizenship. Next, I told you that, but all the government have jurisdictions, all the government have their own power that is mentioned into the constitutions. So all of you know that all the government, like the union government, have the power to make the law only those subject which is included into the union list. State government have the right to make the law on those subject which is included into the state list, and the concurrent list, both the government have the right to make the law over that. Okay, so every government have their own jurisdictions, है ना, and no one can be interpret. Yes, ma'am. Hello, is it Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. I told you that Yes, ma'am. we noted above that. अब देखो यहाँ से आओ, come on the page number 17 पे आओ, just see the third para. We noted above that the most federations that are formed by the holding together do not give the equal power to the its constituent assembly. देखो ये बता रहा है कि जो there are how many type of the federalisms बेटा, how many type of the federalisms are there? 2 types of federalism. 2 types. Okay, which are they? Coming together and holding Together and holding together. Very good. Which type of the federation is found in India? Holding together. What happened in holding together? In this, in our country, many states. There is central government. Bus. There In is this, central a government. country divides its power between the state government as well by powers. Very good. Nation divides its power between central state government is called holding together. In holding together federations, the nation itself divides. Nation itself, which nation? A big nation. Itself divide into the different part. It divide its power into the different constituent assembly for smooth running of the government. जैसे बेल्जियम में भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसी का अपना है. इंडिया में भी देखो, इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट. तो मतलब इंडिया इतना बड़ा है कि उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, अपने पावर को, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. बट इन केस ऑफ द अमेरिका, व्हाट यू सॉ ओवर देयर, कि वहां पे क्या कि ऑल द इंडिपेंडेंट नेशन कमिंग टुगेदर में क्या होता है, नो एनी नेशन डिवाइड इटसेल्फ. नेशन खुद अपने आप डिवाइड नहीं करता है. Here means कि the many small nations they come together and form a big nations. यहाँ पे छोटे छोटे नेशन एक साथ मिलकर के एक बड़ा नेशन बनाते हैं. For which purpose? For their security, for the proper development. क्योंकि छोटे नेशन जानते हैं कि वो सिक्योर नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के एक बड़ा नेशन बनाते हैं. तो उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, एक साथ आकर करके मिलना. होल्डिंग टुगेदर में कोई एक कंट्री लोगों को ऐसे करता है, होल्ड, ये क्या है बेटा, दिस इज होल्डिंग टुगेदर. और कमिंग टुगेदर में, ये कमिंग टुगेदर में आकर के एक साथ मिलना, ये हो गया कमिंग टुगेदर. और होल्डिंग टुगेदर में ऐसे करके ये होल्डिंग टुगेदर हो गया. तो इंडिया में कौन सा फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर. ओके, इन इंडिया देयर इज नो, क्या है, कमिंग टुगेदर. तो व्हाट हैपेंस in the holding together federations, there is something difference. In the coming together, I told you कि all the country, all the nations, they enjoy the all equal power. क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट नेशन आकर के मिले हुए हैं, तो सारा इंडिपेंडेंट नेशन अपने अपने एरिया में अपना पावर एंजॉय करता है. बट इन द होल्डिंग टुगेदर द नेशन डिवाइड इटसेल्फ इनटू द डिफरेंट पार्ट. है ना, पेड़ से ब्रांचेस निकलते हैं, है ना, ठीक है ना, पेड़ होता है उससे कई ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो उसे तो होल्डिंग टुगेदर होता है. ऐसे कर करके ये निकला हुआ है. तो होल्डिंग टुगेदर में तुमने हमने कहा था कि ऑल द गवर्नमेंट नॉट एंजॉय द इक्वल पावर. इसमें तुमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय द मोर इन कंपैरिजन टू द स्टेट पावर. ठीक है, स्टेट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज इन द कमिंग टुगेदर स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे हमने देखा कि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सभी को इक्वल पावर नहीं मिलता है. इज इट क्लियर?
क्या Yes, इंडिया में ma'am. ऐसा Yes, है? ma'am. इंडिया में है? यदि इंडिया में है तो इसका मतलब यहाँ पे फेडरलिज्म है। इंडिया में ऐसा है कि सब स्टेट को इक्वल पावर, किसी ऐसा स्टेट है जिसको स्पेशल पावर दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया है? No, ma'am. No, ma'am. Yes, No, ma'am. ऐसा नहीं है। यस मैम ऐसा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को पहले दी गई थी, उसके Ma'am, बाद Jammu and पाकिस्तान स्टेट को दी Kashmir, गई ma'am, थी। Nagaland also. Nagaland also. जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड को, जम्मू एंड कश्मीर को 370 दिया गया है, नागालैंड को 371 दिया गया है। दिस इज गिवन टू द स्पेशल प्रायोरिटी टू देम, दिया गया है ना 370। ma'am. लेकिन नागालैंड का तो अभी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पढ़ा रहे थे, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि we noted above that the most federations that are formed by the holding together do not give the equal power to its constituent assembly. सारे constituent assembly मतलब सारे स्टेट को equal power नहीं देते हैं। Thus all the state in the Indian Union do not have the identical power. Some states enjoy special status like Jammu and Kashmir. It has its own constitutions. Many provisions of Indian constitution are not applicable to this state without the approval of the state assembly. अभी क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या दिया गया था? स्पेशल प्रोविजंस इज गिवन अंडर विच आर्टिकल्स? अंडर 370 आर्टिकल। आर्टिकल 370 and 35 35A. 35A was not be mentioned into the main constitution, but Article 370 was mentioned into the main constitution. भारत का जब संविधान था उसमें 300 was converted into the 370. तो उसमें तो था, लेकिन 35A was not included into the, किसमें था? Into the main constitution. ये बात समझ आई तुमको? Do you know what is 370 is given to the Jammu and Kashmir? Anyone can tell me? Have you interest in the politics or not? मैम जम्मू कश्मीर के इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया में ज्वाइन होने। मैम उन्हें एडवाइस दिया था कि आप चाहे तो करें तो आप इंडिपेंडेंट तरह रह सकते हैं। 370 उनको दे दिया गया। क्यों दिया गया बेटा? Why the 370 is given? How many students have interest in the civics? कितने बच्चों को civics अच्छा लगता है? मैम हाँ? यस मैम है। मैम है, आई हैव इंटरेस्ट मैम। Only Sakshi? नो मैम जस्ट हाँ? What? हाँ? वो Ma'am, I have कौन है? साक्षी? What about the others? No one has the interest into the civics? Is clear to? My voice is audible to all? यस मैम। Yes ma'am, I'm also interested in civics. In the humanities, the most interesting subject is, do you know? Civics. सबसे interesting subject क्या होता है? Civics. Because in the day-to-day life, you are facing this. हर जगह politics है, हर जगह civics है. तो you are not like this subject. ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट, ये सबसे लाइव सब्जेक्ट है. Political science is लाइव सब्जेक्ट. जीवन वाला सब्जेक्ट है. जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स है. ठीक है? No any student, no any boy say that कि मैम I have the interest in the political science या the civics. देखो, boys have no any interest. Boys have not interest in the social science. How many students? Now we are going to be interact on the 16 na? From 16 your school is going to be open. So you become, ठीक है? And the 50% non-SIP and 50% on and the not responding. Only boys I am asking from the boys. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am, we are in. बस मैम. Only you Yes, have क्या? History. कौन बोलती? Who has interest in the history? हिस्ट्री में भी इंटर नहीं है. Ma'am, ज्योग्राफी I have interest. Yes, sir. हुआ है. Shubham Patel. हिस्ट्री में इंटरेस्ट है. Yes, ma'am. I have interest in SSC.
देखो, नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स। 2009 में किस क्लास में थे? इन 2009 he was in 2009 में तुम लोग किस क्लास में थे बेटा? मैम LKG। मैम 2000 में किस क्लास में थे? 2019 में 8th क्लास। मैम 8th क्लास। 8 उस समय जम्मू एंड कश्मीर से 370 आर्टिकल ऑफ 35A को वापस ले लिया गया था। तुम लोगों ने अपने सोशल साइंस की टीचर से पूछा था यस मैम। ये क्या है? ये क्या है? यस सर। कौन पढ़ाता था सोशल साइंस? राजेश सर। राजेश सर। राजेश सर। राजेश सर से तुम लोगों ने पूछा था कि ये 370 क्या है, क्यों दिया गया था? यस मैम। क्या बताया यस था? मैम। क्या बताया था? बताया था उन्होंने, क्या बताया था? सब भूल गए? अरे मैम सब भूल जाते हैं ना। मैम जम्मू कश्मीर का स्टेटस मेंटेन करने के लिए इंडिया में। स्टेटस मेंटेन करके, उसके पहले उसको स्टेटस नहीं था क्या? मैम वहाँ पे केवल मुस्लिम। मैम इससे पहले वो ऑटोनॉमस स्टेट था। क्यों? यही तो हमने पूछा कि क्यों दिया गया था उसको 370। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट हुई थी उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, नियर अबाउट 365 स्टेट्स वर देयर। देन व्हाई दिस स्पेशल प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस ओनली? क्यों जम्मू एंड कश्मीर क्यों मिला? क्यों नहीं हैदराबाद को मिला, जूनागढ़ को मिला? बहुत सारे स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट, दे वर नॉट रेडी टू जॉइन इनटू द इंडिया। देन व्हाई दिस वन गिवन टू द जम्मू एंड कश्मीर ओनली? मैम क्योंकि इसे पाकिस्तान भी लेना चाहता था। मैम वहाँ के प्रेसिडेंशियल रूल को हटाने के लिए। प्रेसिडेंशियल रूल तो था ही नहीं बेटा। मैम वहाँ पे मैम उसे महाराजा हरि सिंह थे। मुझे पाकिस्तान भी लेना चाह रहा था। कुछ लोग थे जो आना चाहते थे इंडिया पे रहना चाहते थे। पाकिस्तान भी इंटरफेयर करना चाहता। जूनागढ़ और हैदराबाद भी तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और पाकिस्तान उसको भी चाहता था। जूनागढ़ जो अभी तुम्हारा गुजरात का पार्ट है, यस ठीक है, मैम। और हैदराबाद जो तो आंध्रा है, आंध्र कर्नाटका महाराष्ट्र बना हुआ उससे। रीजन ये था कि राजा हरि सिंह द लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और वो जो थे क्या कह रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में डाला जाए। तो क्योंकि उनको ये था कि इंडिया में यदि मर्ज हो जाएंगे तो उनको रूलिंग पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया क्या हो रहा था, वहां पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो रहा था। और डेमोक्रेसी का मतलब है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड बी देयर। तो उनको लगा कि उनका पोजीशन सेफ नहीं होगा और वो न तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था इट इज डिपेंड ऑन यू, आइदर यू ज्वाइन विद पाकिस्तान और द इंडिया और यू रिमेन द फ्री। तो इंडिया ने क्या किया कि जो राजा हरि सिंह जो है, न तो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे न तो इंडिया में इसलिए कि इंडिया में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो रही थी, तो उनको एज ए किंग उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और पाकिस्तान में वो इसलिए वो मर्ज नहीं हो रहे थे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र था, तो वहां पे एक हिंदू को राजा बनने का अधिकार तो दिया नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो वो पाकिस्तान में ज्वाइन है, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन जो है वहां पे जो कश्मीर है वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, उस बेसिस से पाकिस्तान हमेशा सोचता था कि वो जम्मू एंड कश्मीर को अपने पक्ष में करना। वो सोचता था जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। उसने क्या किया, जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जनरल थे उसमें कौन थे, जिन्ना, उन्होंने क्या किया कि अपनी कुछ मिलिट्री को जो था वहां से क्या करे, अपने कुछ ट्राइबल्स को कहाँ भेज दिया, घुसपैठ करवा दिया पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में। तो जब जम्मू एंड कश्मीर में वो घुसपैठ करके अत्याचार, मारना पीटना सबका करने लगे, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करने लगे,
तो उन्होंने क्या किया, वहां के राजा ने तब इंडिया के साथ क्या किया, इंडिया की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? क्यों? Yes, ma'am. इंडियन गवर्नमेंट से उसको हेल्प चाहिए, मिलिट्री की हेल्प चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम तब तक मिलिट्री की हेल्प नहीं करेंगे जब तक कि तुम जो है मेरी ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट पे साइन तो कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री को भेज दिया, और उसके भेजने के बाद जो है मतलब तुम्हारा जो LOC लाइन है वहां पे ये सीज फायर हो गया। LOC सुने उन लोगों ने? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. व्हाट इज फुल फॉर्म है LOC? लाइन ऑफ। Line of control. तो कुछ पार्ट जो है अभी भी जम्मू एंड कश्मीर का, वहीं पे UNO के इंटरफेरेंस से उसी लाइन पे, उसी जगह पे दोनों कंट्री के बीच में सीज फायर हो गया, मतलब दोनों कंट्रियों के बीच में वॉर को रोकने की अनाउंसमेंट जम्मू UNO ने कर दिया। तो दोनों की सेना आमने सामने आज भी खड़ी है, और उसमें UNO ने कहा था कि जब जो कश्मीर का पार्ट जो है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो UNO ने कहा कि जब पाकिस्तान की जो पूरी फौज यहाँ से जब वापस चली जाएगी और यहाँ भी कोई भी पाकिस्तान का यहाँ नहीं रहेगा कश्मीर वाले पार्ट में, तब जो है इंडिया अपनी आर्मी जो है LOC से हटाएगी। ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों देश की आर्मी पड़ी हुई है, और वो पार्ट जो है कश्मीर जो है POK जो है कश्मीर का वो पार्ट पाकिस्तान आज भी कब्जे में कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो 370 क्यों दिया गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहना था कि ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन बना था कि उस सिचुएशन में राजा हरि सिंह को हमारे मतलब इंडिया में मर्ज होने के लिए सिग्नेचर करना पड़ा था। इज इट क्लियर? क्या कहा था उन्होंने? मजबूरी में उन्होंने किया था, Yes, मजबूरी ma'am. में किया था Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. अपने को प्रोटेक्ट करना था, अपने को किससे? पाकिस्तान की आर्मी से, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पूरा अत्याचार, मतलब बहुत गंदे थे, लोगों को मर्डर कर रही थी, गैंग रैपिंग करनी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो किसी को छोड़ रही थी। वहां की पॉपुलेशन जो है मतलब 1/3 बच गई। तो राजा हरि सिंह ने तब उस सिचुएशन में उन्होंने सिग्नेचर किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आई एम नॉट बी एग्री फॉर दैट, कि ऐसा हम नहीं मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया का पार्ट बने इस सिचुएशन में। हम चाहते हैं कि देयर शुड बी अ प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मींस होता है कि द एग्रीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया। If the people of this area agree, if they give their vote in the favor of the India, then the Jammu and Kashmir become the part of India. Is it clear, beta? Yes, ma'am. ठीक है, कि जब तक यहाँ की जनता हमारे फेवर में वोट नहीं करेगी हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसा है तो हिस्ट्री में लिख जाएगा कि जबरदस्ती इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को अपने पक्ष में किया। लेकिन उस समय का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि लोग अपना एग्रीमेंट दे सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत क्योर्स था। तो ये हुआ कि जब जब तक यहाँ का मैटर जो है पीस नहीं होता है, यहाँ पे शांति नहीं आती, तब तक यहाँ पे प्लेबिसाइड नहीं होगा। और उस समय तक के लिए क्या किया जाए, उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन रहा था। ठीक है, अंडर द किसी गार्डनशिप में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या किया गया कि ये कहा गया कि जब तक इनका मतलब प्लेबिसाइड नहीं होता तब तक उनको एक स्पेशल आर्टिकल दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? 370। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इस 370 के अनुसार कि वो अपने एरिया में तब तक रूल कर सकते हैं जब तक कि यहाँ पे प्लेबिसाइड्स नहीं हो जाता। जब प्लेबिसाइड्स हो जाएगा तो उसके बाद जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। ये आर्टिकल 370 में। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्यों ma'am. 370 दिया गया था? तो 370 में ये कहा करके गया था कि इस एरिया में जम्मू एंड कश्मीर इनका ऑटोनॉमी है, कि इस एरिया में ये रूल करेंगे जब तक कि यहाँ पे अपनी सरकार मतलब जब तक कि ये फुल्ली एग्री होकर करके इंडिया में शामिल नहीं हो जाते। ठीक है, दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है, 1952 में जिन्ना के शेख अब्दुल्ला, हाँ, अब जब यहाँ पे ये ऑटोनॉमस जब हो जाता है तो राजा हरि सिंह को रिजाइन करना पड़ता है, और उनकी जगह पे शेख अब्दुल्ला को, जो फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, उनको यहाँ का PM बना दिया जाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है,
अब Yes, ये ma'am. पावर किसको दे दिया कि जम्मू एंड कश्मीर को? शेख अब्दुल्ला के पास चला आता है। शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू में 1952 में एक एग्रीमेंट होता है दिल्ली में। उसके अनुसार वो शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे एरिया को एक मतलब है फुल गारंटी के साथ क्या दे दिया जाए, उनको प्रायोरिटी, उनको स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए कि ताकि जो हम इस एरिया में बिना किसी मतलब रेस्ट्रिक्शन का रूल कर सके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला के उसमें इन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ, एक किसके साथ हुआ? प्रेसिडेंट के साथ। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया 1954 में। क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। इज इट क्लियर? क्या होगा? Constituent Assembly. हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसी तरह इसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है? अरे सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अरे क्या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी इनकी। गलत निकल गया मेरे मुझसे, सॉरी। लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जैसे हर स्टेट में होता है। और उसके जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली को करने के लिए क्या चाहिए? रूल एंड रेगुलेशन चाहिए। तो उसका रूल रेगुलेशंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन से नहीं होगा, इनका खुद का अपना क्या होगा बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इज इट क्लियर? देखो सुनते जाओ, क्या कहा कि इनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और उस लेजिस्लेटिव असेंबली का रूल रेगुलेशन इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। कौन बनाएगा? खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए ताकि वो खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। और जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट है वहां के लॉ और ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक कि लेजिस्लेटिव असेंबली उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि जब तक वहां पे पास नहीं होगा तब तक इंडिया के रूल रेगुलेशन को वो फॉलो नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस नहीं है बात को? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से समझाएंगे कि उन्होंने कहा कि इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और यहाँ का जो नियम कानून वही बनाएगी। यहाँ पे इंडिया के नियम कानून नहीं चलेंगे, तब तक नहीं चलेंगे जब तक ये लेजिस्लेटिव असेंबली इसको पास नहीं कर देती है। ठीक है, फिर ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1956 में इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, क्योंकि इन्होंने एक असेंबली बनाया 1954 में और 1956 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। उनके अनुसार जो है, जो यहाँ पे 10 साल पहले से जो लोग कश्मीर में रहते थे वो यहाँ के रियल हैबिटेंट कहलाएंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। और जो 1956 के बाद यहाँ पे आए हैं वो यहाँ के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। पहली बात, ये अंडर 35 के अंडर में हुआ, जिसको प्रेसिडेंट ने दिया था। कब दिया था? 1954 में। उस 50A के अनुसार इनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और यहाँ के लोगों की अपनी सिटीजनशिप होगा। सिटीजनशिप उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ 10 साल पहले से रह रहे थे। और कब तक? 1956 के बाद जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ का सिटीजन नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरी बात है कि यहाँ पे कि जो यहाँ के सिटीजन है वही यहाँ पे यहाँ की जमीन प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बाहरी नहीं खरीद सकता है। जो यहाँ के लोग हैं वही यहाँ की गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, बाहरी नहीं। मतलब कि इंडिया के लोग, इवन कि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग भी वहां जाकर के जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। मतलब इंडिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, ना तो यहाँ पे जॉब कर सकता है। केवल कश्मीर के लोग ही यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजंस दे दिया गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया कि यदि कोई कश्मीर की लड़की इंडियन लड़के से यदि शादी करती थी तो उस लड़की को वहां की सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाता। यदि कश्मीर की लड़की यदि पाकिस्तान के लड़के से शादी करती थी तो उस पाकिस्तानी लड़के को भी वहां की सिटीजनशिप, देखो
कितना इन्होंने, पाकिस्तान के लड़के को कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाती, अब पाकिस्तान का लड़का आकर के वहां पे खरीद सकता था, लेकिन यदि कश्मीर की लड़की ने यदि इंडियन लड़के से शादी कर ली है तो उस कश्मीर की लड़की की भी नागरिकता को खत्म कर दिया जाता था, मतलब उसका जो अधिकार था कश्मीर से उसका खत्म हो जाता था। इस तरह जो है कश्मीर में धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ पे मतलब ये लोग पावर को मिसयूज करना शुरू करने लगे। तो ये जो आर्टिकल जो 35A दिया गया था वो धीरे धीरे क्या बनने लगा, हमारे लिए क्या बन गया, खतरा बनता चला गया। ठीक है, तो ये एनडीए गवर्नमेंट ने 2019 में इसको हटा दिया। क्या कैसे, किस बेसिस पे हटाया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी चीज ऐसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, उसको बिल पारित किया जाता है। तो इसके लिए पहले बिल कहाँ रखा गया, कहाँ पे रखा गया, राज्यसभा। नहीं, स्टेट से रिलेटेड कोई भी बिल होता है वो राज्यसभा में आता है, वहां पे डिस्कशन चला, डिस्कशन उसको पास कर दिया गया, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया और 31 अगस्त को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और 35A और 370 को हटा दिया गया। तो जो इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया था वो खत्म कर दिया गया। किस बेसिस पे खत्म किया गया था? ये कहा गया था कि 35A को मेन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं था। और ये आर्टिकल कैसे पास हुआ था बेटा, किसने इस आर्टिकल को दिया था? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट को अधिकार नहीं मिलता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि वही राइट उसको मिलता है, उसी बिल को, उसी लॉ को इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता है जिसको पार्लियामेंट पास करती है। पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन के द्वारा पास होती है, क्योंकि इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इज इट क्लियर? और 35A का कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हुआ था, ये केवल प्रेसिडेंट के ऑर्डर से दिया गया है। और प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर, ये भी कहा गया था कि यदि इमरजेंसी पावर होता है, इमरजेंसी है, वॉर लाइक सिचुएशन है, यदि प्रेसिडेंट कोई लॉ को बनाता है तो वो लॉ उस इमरजेंसी तक ही रहेगा। उस लॉ को यदि परमानेंट बनाना है तो फिर जब पार्लियामेंट में उसका डिबेट और डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट में बहस होगी, और जब वो मेजोरिटी से पास होगी तभी उस लॉ को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। बात समझ में आ रही है? तो 35A का पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ है, इसलिए ये जो है ये राइट नहीं है, आर्टिकल नहीं है। इस बेसिस पे इसको क्या कर दिया गया बेटा, हटा दिया गया। लेकिन वहां के लोग ये कहते हैं कि ये राइट उनको दिया गया है और इस तरह केवल बहस कर करके इसको हटाया नहीं जा सकता, ये फेयर नहीं है, ये इलीगल है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखो क्या जजमेंट देती है। इज इट क्लियर? समझ में आया? आर्टिकल क्या है, 35A क्या है, क्यों इसको हटा दिया गया? क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत खतरा है ना, खतरा हो रहा था, आए दिन वहां पे क्या हो रहा था, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। इज इट क्लियर? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन। समझ में आया? चलो अब टाइम हो गया बेटा, आई हैव टू गो टू, कल टाइम है, कल एक्स्ट्रा टाइम है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम्स, टुमारो आई विल एक्सप्लेन इन द, ठीक है, इन ए डिस्क्रिप्टिव मैनर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का समझ में आया? तो मैं बताऊंगा और किसको स्पेशल प्रायोरिटी क्यों दी गई थी। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी। जम्मू एंड कश्मीर की बात है, सो आई हैव एक्सप्लेन, इट इज नॉट इन सिलेबस, बट इफ एनीवन आस्क्ड यू, क्योंकि ये बर्निंग न्यूज है, अभी चल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर से 370 आर्टिकल्स को ले लिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर नाउ नॉट अ स्टेट, इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बन गया। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? 9. Do you know? Can you tell me the name of this union territory? Yes. बोलो यस मैम। बोलो जल्दी बोलो बोलो पंजाब बोलो। पंजाब इज यूनियन टेरिटरी। देखो मैम, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, एंड मैम दिल्ली, चंडीगढ़। कितना हुआ? दादर एंड नगर
हवेली और जम्मू एंड कश्मीर 8 और क्या 9 कौन सा हो गया और दामन एंड दीव। दमन दीव तो बोली है वो मैं नेशनल और लद्दाख लद्दाख कैपिटल भी बोलिए लद्दाख 9 तो हो गए तुम। जब ये बना था लिसन जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख it is converted in 2 union territory. So that time India had the 9 union territory, but now it has not the 9 union territory, it has 8 union territory because the Dadra Nagar Haveli and Daman Diu both are going to be intermingled with each other. ठीक है, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव था अलग अलग था वो अब एक साथ हो गया है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम ये हुआ था 26 जनवरी 1920 को। तो अब कितने हो गए? 8 यूनियन अब समझ में आ गया? 8 यस मैम। 9 मत कहना, ठीक है। और कितने स्टेट्स हो गए? 28। 28 states, ठीक है। ओके, टुमारो आई विल कंटिन्यू दिस, ठीक है। और क्रिएट योर इंटरेस्ट इन दिस political science. It is very interesting subject and lot of the query, lot of the knowledge, and you are living in this environment. What is going on? It is तुमको पता ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। What is democracy? What is the means the main feature of the democracy? How do you come to know? यही रीजन है कि यहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए लोग अपने राइट्स को भी इंजॉय नहीं करते हैं और इसीलिए यहाँ पे लॉट ऑफ करप्शन है। इंडिया में करप्शन के पीछे ये भी रीजन है। सो क्या चाहिए? क्रिएट इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यस मैम यस मैम, एकदम दबी हुए यस मैम, यस मैम। नो इंटरेस्ट, मैम क्रिएट इंटरेस्ट। हाँ बोलो। मैम आई वांट टू आस्क अबाउट हु वर कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित बेटा वहां पे हिंदू भी तो हैं कश्मीर में, अभी तुमको बताएंगे कि जो वहां पे हिंदू भी हैं, ठीक है। कश्मीर में केवल मुस्लिम्स नहीं है, जो कश्मीर है वहां पे देखो जम्मू में हिंदू हैं, कश्मीर में क्या है तुम्हारे वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटीज है, और जो तुम्हारा जो यहाँ है लद्दाख में वो हिंदू है, ठीक है। तो कश्मीर में क्या होगा, वहां पे कुछ माइनॉरिटी है कश्मीरी जो है पंडित जो है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कश्मीर में अभी जब इस समय जब मुस्लिम्स है धीरे धीरे इनके बीच में क्या भर दिया गया, इनको 35A दे दिया गया। तो इनको लगने लगा कि जो है इंडिया में जब पाकिस्तानी चूंकि पाकिस्तान वाले इनको भड़काते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है कश्मीर के लोगों ने क्या किया, जो वहां पे जो पंडित थे, कहाँ कश्मीर में जो पंडित जो थे उनको वहां से भगा दिया गया। इज इट क्लियर? कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया गया था और वो बेचारे भाग कर करके इंडिया में मतलब इंडिया के अदर पार्ट में उन्होंने शरण लिया था। उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर, ये सारी चीजों को देखते हुए बेटा ना वहां पे इतना ज्यादा मतलब क्राइसिस, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। इनको जो स्पेशल प्रायोरिटी देने के कारण क्या है, यहाँ पे हिंदू ज्यादा सफर फॉर दैट, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। ये धीरे धीरे पाकिस्तान से मिलकर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। इन सब चीजों को देखते ही हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि जो इनको स्पेशल प्रायोरिटी दी गई उसको लेने का समय आ गया। तो उनको कोई गवर्नमेंट तो हटा नहीं रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसी उस पे हटाया कि जो 35A जो दिया गया है वो हमारे पार्लियामेंट में उसको लोग जो दोनों हाउस उसमें जब डिबेट डिस्कशन के बावजूद दिया गया है, तो ये इसका कोई ये लीगल है ही नहीं। उस बेसिस पे उन्होंने हटाने की कोशिश की, क्योंकि ये यदि हटाते नहीं तो यहाँ पे बहुत आए दिन क्या हो रहा था, ये टेररिज्म को बढ़ावा दे। तुमने पढ़ा ये कितना सारा न्यूज है कि यहाँ पे हमें हर समय मारपीट, यहाँ की सरकार भी क्या होती है, मुस्लिम सरकार होती है और वो क्या करते हैं, मुस्लिमों को एडवांटेज देती है, पत्थर मार ये सब देखे हो ना। यस मैम। यहाँ पे क्या इंडिया नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम को वहां बदनाम किया जाता है, उसको मतलब अब्यूज किया जाता है। यहाँ ऐसी ऐसी टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ाई जा रही थी, लोगों को भड़काया जा रहा था, ठीक है, हिंदुओं के साथ टॉर्चर किया जा रहा था। तब यहाँ पे इसको लिखा गया कि इसको खत्म कर दिया जाए, समझे। तो कश्मीरी पंडित यहाँ पे
जो पंडित हैं, ठीक है, जिससे तुम्हारे नेहरू जी बिलोंग करते थे। नेहरू भी क्या है? कश्मीरी पंडित, यस ठीक है। और एनी मैम अनुपम खेर भी कश्मीरी पंडित से बिलोंग करते हैं ना? अनुपम खेर, हाँ ये लोग सब, अब हमको इतना अनुपम खेर के बारे में नहीं पता है, लेकिन ठीक है, तो वहां पे है। और आज भी है, मतलब ये कश्मीरी जो पंडितों को आज भी दुख है, क्योंकि ये अपना घर बार छोड़ कर करके इधर आकर के सेटल हो गए थे, तो आज भी इनको गुस्सा है। किसके प्रति? इन कश्मीर के प्रति, मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर। मुस्लिम, ठीक है। तो कश्मीर में मोस्टली मुस्लिम्स हैं, ठीक है। पहले इनके अंदर ये टेंडेंसी थी, लेकिन इनको भड़काया जा रहा है बेटा, इनको दिया जा रहा है बाहर ही आकर करके, क्योंकि वो ठीक बॉर्डर से किसके पास चिपके हुए हैं? सीधे उनका टच पीओके से है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से है, तो ये डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आते हैं। और यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान आ जा रहे हैं। क्यों पाकिस्तानी आ रहे हैं? कश्मीरी लड़कियों से शादी कर करके ये यहाँ पे आ रहे हैं। उनका मेन मकसद है यहाँ के लोगों को भड़काना, ठीक है, यहाँ की यूनिटी इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करना। तो इस कारण ये चीजें यहाँ पे हो रही थी, तो सरकार ने ये स्टेप्स लिया, ठीक है। चलो, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम।